तो हम आज पढ़ने वाले हैं फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। Function is a fundamental chapter of whole calculus. If you are able to solve the function, then the whole calculus will be very easy. Even the function starts from two sub main topic, that is number one, set. So before function, let's see set. What is set? Set is a collection of well-defined objects. Set is a collection of well-defined objects. For example, a collection of intelligent students. Is it a set? Let's see. To make the group or to make the collection, the word is intelligent. Any student is found to be intelligent must have some scale, measurement, by which quality or which measurement he or she will be intelligent. There is no such quality mentioned in the statement. So this statement is a doubtful statement, whether some student will be considered intelligent or not. That is why this is not a set. Let's take another example. Set A, that is a collection of students scored more than 90% in 10. By the statement, it is clear that whoever has scored more than 90% in 10th will be in the group. So this statement is a clear statement. Anyone can make the group. There is no doubtful in this statement, no doubtful sentence or no doubtful words in this statement. So this is a set. We also represent set by numbers or objects or 5. These 1, 2, 3, 4, 5 words are elements of the set or objects of the set, and this is called set listing method. We can also represent x such that x is natural number less than 6. This is also a method of representation of the set. Now let's see another thing, that is relation. First, set. Set is a collection of well-defined objects. That is well-defined objects. It is clear the objects which are in set has clear definition. Well-defined, proper set. Now, relation. What is relation? Any relation
set B by any relation, and this is called the relation. Relation is represented by relation such that from set A to set B. Also, relation can be represented by one is related to A, one is to B, two is to C, two is to C, and three is to B. This is also method of representation of the set. In this representation, it is clear that one is element of set A and A is element of set B. So now let's see function. What is function? A special relation from set A to set B in which each element of set A is related to only one element of set B. A special relation from set A to set B. There is any set A, there is another set B. 1, 2, 3, and let's call A, B, C. Set A to set B in which each element of set A, one is related to A, two is to B. Is this a function? Let's see. Each element of set A is related to. Each element should be related to set B of set A. Here we see 1 is and 2 is related to B, but 3 is not related to any element of set C. That is why this is not a function. Condition is to check the function that each element of set A हर एक एलिमेंट सेट A का सेट B से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास सेट A है और सेट B है। 1, 2, 3 A, B, C and D. 1 is related to A, 2 is related to C, 3 is to B and 3 is to D. Is this a function? हर एक एलिमेंट सेट A का सेट B से जुड़ा है, but each element of set A is related to only one element of set B. सिर्फ एक एलिमेंट से सेट B के जुड़े होने चाहिए। 1 एक से जुड़ा हुआ है, 2 भी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, 3 B से जुड़ा हुआ है, 3 D से भी जुड़ा हुआ है। तो 3 दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 3 एक से नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन का एग्जांपल अगला देखते हैं हमारे पास। This is set A and set B. 1, 2, 3. 1, 4, 9. 1 is related to 1, 2 is to 4, 3 is to 9. हर एक एलिमेंट सेट का सेट B से जुड़ा है। एक एलिमेंट एक से ही जुड़ा है,
ये फंक्शन है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट इज 1 2 3 इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। Domain of function, and those elements which are related to set A in set B, set B के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट A से जुड़े हैं, ये सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे 149 is range of function। इसी का नाम है इमेज V2। सेट A से सेट B में फंक्शन डिफाइन के बाद सेट A के वो सारे एलिमेंट्स डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएंगे और रेंज वो सारे एलिमेंट्स सेट B में जो सेट A से जुड़े हैं। एग्जांपल है 1 2 3 1 4 9 60। सेट A सेट B से फंक्शन है 1 1 से जुड़ा है, 2 4 से, 3 9 से। क्या ये फंक्शन है? आइए देखते हैं। 1 1 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, 3 9 से। हर एक एलिमेंट सेट A का सेट B से जुड़ा है। हर एक एलिमेंट सेट A का एक ही एलिमेंट सेट B से जुड़ा है। लेकिन 16 यहां नहीं है किसी से। डेफिनेशन देखते हैं कि each element of set A is related to only one element of set B, लेकिन कहीं ये कंडीशन नहीं है कि सेट B में एलिमेंट किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें ये हो सकता है, एंड इस केस में हमारे पास फिर से डोमेन आ जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 2 3 एंड रेंज 1 4 9। तो फिर ये 16 क्या है? The whole set B is codomain of function, that is 1 4 9 and 16। डोमेन और रेंज ये जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस और स्पेशल फंक्शंस, ग्रेट इंटीजर फंक्शंस, इन सारे फंक्शंस के जो प्री डिफाइंड डोमेन है उनमें वो सारे फंक्शंस डिफाइंड है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ टू फाइंड डोमेन का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ x minus 3 divided by x plus 3 into under root x square minus 4। डोमेन निकालने के लिए सबसे पहली बात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जितने सारे फंक्शंस है डिफाइंड in their respective domain। दूसरी बात कि किसी भी डोमेन निकालने के लिए अगर कोई क्वांटिटी इनसाइड द रूट, दैट इज मान लेते हैं fx अगर रूट के अंदर है तो रियल सॉल्यूशन के लिए fx must be greater or equal to 0। रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तीसरे नंबर की बात है कि कोई भी फंक्शन अगर px बटा qx के रूप में है तो qx कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसी का नाम है डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आइए अब डोमेन निकालते हैं। सबसे पहली बात
inside the root must be greater equal to 0, but ये रूट डिनोमिनेटर में है और अगर ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरी बात कि x - 3 इक्वल टू 0 रखेंगे एंड x + 3 नॉट इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन हम चेक करेंगे एक साथ, और जब भी तीन कंडीशन एक साथ चेक करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सॉल्व करते हैं। x + 2 * x - 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको नंबर लाइन में बनाते हैं तो 2 - 2 + 2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 तो -∞ से -2 यूनियन टू इंफिनिटी। यहां से x कैन नॉट बी इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 3। तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आ गया पॉइंट्स -3 -2 एंड 2 एंड 3। ये कहा -∞ से -2, -∞ से -2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 to infinity 2 to infinity। ये -3 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हम अपर रखेंगे 3 हो सकता है, ये हो सकता है। पूरा सेट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सारा पार्ट हमारा, ये सारा पार्ट आंसर होगा x बिलोंग टू -∞ से -3 यूनियन -3 से -2 यूनियन टू infinity। That is our answer। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, that is डोमेन निकालना है sin x plus √16 minus x square। sin x रूट के अंदर की क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन दूसरा 16 minus x square मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा कॉमन जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। इसको लिख सकते हैं 16 minus x square that is 4 plus x into 4 minus x equal to 0। x का कोएफिशिएंट यहाँ नेगेटिव, कभी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट अलजेब्रिक में नेगेटिव हो उसको पहले पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये हम बनाएंगे नंबर लाइन -4 प्लस माइनस प्लस, ये हमारा कह रहा है ये वाला पार्ट होगा x बिलोंग टू -4 टू, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि sin x ग्रेटर इक्वल टू 0। हम sin x का ग्राफ जानते हैं, आइए sin x का ग्राफ बनाना। ये हो गया sin x का ग्राफ, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई माइनस पाई माइनस 2। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14, 2 पाई का 6.28 माइनस पाई का -3.14 माइनस 2 पाई का -6.2। रेस्ट्रिक्शन है x जो है -4 से 4 तक होना चाहिए, तो 3 से आगे चलेंगे तो कहीं हम 4 आएगा x = 4, -3 से कहीं चलेंगे तो ये -x = -4। यहां से यहां तक sin x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, मतलब x एक्सिस के सिर्फ ऊपर की वैल्यू लेनी है, और ऊपर के वैल्यू sin x में कौन सा है, ये सारे। तो हमारा आंसर होगा x बिलोंग टू -4 से ये पॉइंट -π दोनों इंक्लूडेड यूनियन 0 to that is our।
डोमेन के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, log of 0.4 x minus 1 बटा x plus 5 का whole under root. Inside the root, quantity must be greater or equal to 0. Log 0.4 x minus 1 बटा x plus 5 must be greater or equal to 0. इंटरसेक्शन लॉग की खुद की प्रॉपर्टी है कि लॉग के फंक्शन में जो है x minus 1 बटा x plus 5 ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जो बेस है ये लेस देन 0.4। जब भी लॉग का बेस लेस देन 1 हो तो हम जब इसका एंटी लॉग लेंगे, लॉग हटाएंगे, तो ध्यान से कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, दैट इज x minus 1 बटा x plus 5 लेस देन इक्वल टू 0.4 का पावर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इधर आएगा -1 x plus 5 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो x minus 1 minus x minus 5 divided by x plus 5 less than equal to 0। ये कैंसल, -6 divided by x plus 5 less than equal to 0। माइनस अभी यहाँ है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। ये हम नंबर लाइन में नोट करेंगे, -5 प्लस माइनस x बिलोंग टू minus infinity, x belong to -5 to infinity, that is -5 infinity। ये हमारा पहला सेट है। आइए दूसरा सेट देखते हैं, x minus 5 divided by x plus 5। ये क्लियर है कि यहाँ पे x minus 5 1 -5 नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, ये हमारा सेट है। -5 इंक्लूडेड नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x बिलोंग टू -infinity से -5 यूनियन 1 to infinity, 1 भी शामिल नहीं होगा। कंबाइंड सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ये का -5 से -5 से infinity, -5 शामिल है, -5 से एक आ रहा है -infinity से -5, -infinity से -5 और यूनियन 1 to infinity। दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए जहां जहां डबल डबल लाइन है वो हमारा आंसर, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है डबल लाइन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। x belong to 1 to infinity, that is our आंसर। तो ये हो गया डोमेन कैसे निकालते हैं। अगर फंक्शन का डोमेन क्लियर है तो फंक्शन क्लियर है, और फंक्शन से ही आगे कैलकुलस में सारी चीजें आसान होती चलती हैं। अगला है हमारे पास रेंज निकालना। रेंज निकालने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज रेंज? सबसे पहले रेंज का क्वेश्चन देखेंगे, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। रूट के अंदर की क्वांटिटी क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले इसे हम परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको ब्रेक कर लीजिए, प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ये क्वांटिटी हमारी, ये क्वांटिटी जो है रूट के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी,
रियल नंबर में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी रखो, ये पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा तो ये भी नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके दोनों पॉजिटिव, इसका मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ सकता है? x इक्वल टू 2 पर ये आएगा 0, तो मिनिमम पर ये देगा √2 और मैक्सिमम x इक्वल टू इंफिनिटी पे चला जाएगा इंफिनिटी, तो इसीलिए इसका होगा रेंज √2 टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और हम चेक करते हैं। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 3/2 प्लस 3/2 ऐड करेंगे और होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे प्लस 2। ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 9/4 प्लस 2। इन दोनों को सॉल्व करो, 4 to 8 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अगेन दिस क्वांटिटी इज स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। माइनस 1/4 यहां पर, तो x बराबर x इक्वल टू 3/2 पर, x इक्वल टू 3/2 पर ये क्वांटिटी 0 और ये माइनस हो जाएगा, तो इनसाइड द रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसका डोमेन चेक करेंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 का फैक्टर है ये। हम इसको चेक करेंगे 1 2 प्लस माइनस x बिलोंग टू ग्रेटर मस्ट बी इक्वल रूट के अंदर है, तो ये क्वांटिटी को ग्रेटर इक्वल टू 0 रखने के लिए x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन टू इंफिनिटी। x इक्वल टू 3/2 इस डोमेन में नहीं है, तो ये खुद के डोमेन में डिफाइंड है, तो ये कभी भी माइनस 1/4 नहीं है। तो इट्स मीन मिनिमम वैल्यू इसकी जो आएगी वो 0 आएगी फैक्टर पे और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। दैट इज आवर क्वेश्चन है हमारे पास। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास इस रूप में आ गया, फाइंड द रेंज ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये बनेगा yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो yx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस yx प्लस x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम अगर इसको x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाए तो y माइनस 1x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इनटू x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये चीज x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर का है तो x में क्वाड्रेटिक है। अगर ये रियल नंबर सॉल्यूशन है, इसका x रियल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू y माइनस 1 इनटू y माइनस 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये y माइनस 1 y माइनस 1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 4 का 2 मल्टीप्लाई करके इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम इसे फिर लिख सकते हैं y प्लस 1 प्लस 2 इनटू y माइनस 1 इनटू y प्लस 1 माइनस 2 इनटू y माइनस 1
must be greater equal to 0. हम इसे सॉल्व करेंगे y plus 2y 3y plus 1 minus 2 minus 1 y minus 2y तो minus y plus 1 plus 2 that is plus 3 equal to 0. Again algebraic का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव को पहले पॉजिटिव कर लेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा y minus 3 less than equal to 0. नंबर में इसको डिनोट कर लेंगे, ये बनेगा 1/3 और वो 3 1/3 और ये 3 प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 को हम लेंगे तो y belongs to 1/3 to 3 that is our answer. और यही हो गया हमारा रेंज. ऐसे क्वेश्चंस को पहले क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इसको x में क्वाड्रेटिक बनाया. अब x का कोएफिशिएंट जो है वो खुद y है तो x अगर रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए और इससे हम कंडीशंस बना के इनइक्वालिटी बना के y की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा रेंज होगा.